Okay. So yesterday we were discussing about the success factors for professional salespeople. Certain qualities which you need to imbibe if you are planning to go into the field of marketing and sales. I also told you that you all who are attending the classes are a man of marketing. Like you have to make your career in the field of marketing and sales. So just check it out, check yourself that how many qualities exist in you, and if not, so you have to learn all these to imbibe these qualities. So we have discussed. Jalan mute करो. Are you in the campus right now? Aman, नो सर, वो बस बैकग्राउंड है सर, yeah. फेक बैकग्राउंड. Okay, so the first one was listening skill. As I told you that you have to be a good listener if you are going to jump up in the field of marketing. Second was follow up skills. Not everyone used to take the follow up, which is a lacuna on the part of salesmen, right? So make it a habit that if you start your marketing job, do maintain a diary, and on daily basis you have to note down the date and the time which is told to you by the customer, prospective customer, कि सर इस दिन आप मुझे कॉल कर लीजिएगा. That cannot be remembered by the mobile phone if you will not write it on your diary. Third was ability to adopt sales style from situation to situation. That's an art. If you are dealing with a person who is arrogant, then how to talk with him. If you are dealing with a person who is very soft spoken, then there should be a style of doing the business talk with him. So accordingly you have to find it out that what kind of person you are dealing with and how to talk with him or her, right? So that is the ability to change yourself according to the situation. Fourth was tenacity, sticking to the task. देखिए हम लोगों में प्रॉब्लम क्या होती है कि हम as a human being we try to do something, and if we find any difficulty, any problem in doing that task, so what happens, we leave that task. छोड़ो यार, होगा, देखा जाएगा, ठीक है, डोंट डू दिस. तो होना क्या चाहिए कि एज अ सेल्समैन, see, if any problem is there and if you are not able to rectify it, if you are not having the solution of that problem, then ask your boss, discuss it with your senior, they will handle it. Suppose आप किसी दिन गए मार्केट में एंड कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपको बनाना है नया और आपने उससे बात करी, उसने कुछ शर्तें रखी या उसने कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया जो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, और आप सुनकर घर आ गए अपने, आपने सोचा छोड़ो यार ये चीजें मेरे बस की बात नहीं है, तो आई कांट हैंडल इट, मेरे मेरे पास पावर नहीं है. तो आपने क्या करा, हो सकता है कि वो अच्छा एक डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है भविष्य में कंपनी का, आपने छोड़ दिया, आपने जाने दिया, ठीक है. तो आपको ऐसी चीजों को छोड़ना नहीं है, कंप्लीट करना, फिनिशिंग टच देना, ठीक है. तो अच्छा सेल्समैन वही है जो कन्वर्सेशन स्टार्ट होने से लेकर उसको परसुएड करना, उसको फॉलो अप करना और फाइनली उसको एक फिनिशिंग टच देना, ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करें, ठीक है. तो आपको लास्ट तक उसको लेके जाना है जब तक कि आप उसकी जेब से पैसा अपनी जेब में ना ले आओ. कहने का मतलब ये है कि सेल ना कंप्लीट कर लो, ठीक है. तो सेलिंग होने के बाद ही आपको वो चैप्टर फाइल बंद करनी है, वरना उस पर कंटिन्यूअस लगे रहे. फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स. देखिए ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स मींस ऑर्गेनाइजेशन. अब ऑर्गेनाइजेशन, आप सेल्समैन है, आप किस चीज का करेंगे, सोचने वाली बात है.
तो आपके पास कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो कंपनी देती है, ठीक है। जैसे क्या आपको क्या चीज कंपनी दे सकती है, एनी आइडिया? एनी आइडिया? सपोर्ट में आपको कंपनी सेल्समैन को क्या क्या देती है? इंसेंटिव देती है। नहीं, सेल्स को करने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, आपको क्या चीज साथ में चाहिए जब आप बात कर रहे हैं कस्टमर? सर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जैसे ब्रोशर को कैसे? ब्रोशर, यस यस। प्रोडक्ट मंजरी ने बताया, ठीक है। देखिए होता क्या है कि बहुत सारी चीजें ना आपको, जब ऐसा होता है कि जब आप एज अ सेल्समैन किसी कंपनी में जुड़ते हैं, आपको ट्रेन किया जाता है, शुरू में आपको ट्रेनिंग दी जाती है, और ट्रेनिंग देने के बाद आपको कुछ सपोर्ट सिस्टम कंपनी देगी और फिर मार्केट में उतारेगी, है ना। अगर आपको खाली ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा मार्केट में तो आप काम नहीं कर पाओगे। तो उस केस में क्या होता है कि कंपनी के सपोर्ट सिस्टम वहां पर काम करते हैं, ठीक है। तो सपोर्ट सिस्टम में क्या क्या आएगा, जैसे ज्यादातर कंपनी क्या करेंगे, अगर टेक्निकल नेचर का प्रोडक्ट है या उसमें बहुत सारी वेराइटीज है तो लैपटॉप देती है, ठीक है। मोबाइल फोन भी ज्यादातर कंपनीज जिनमें हैवी, अगर आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो आप पर्सनल मोबाइल में नहीं, कंपनी के मोबाइल में इंस्टॉल करोगे, उसमें कई सारा अगर डेटा रखना है तो मोबाइल कंपनी देगी। ब्रोशर देती है, कुछ प्रोडक्ट्स के सैंपल देती है, वो आपको अपने बैग में रखने हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ डेटा देती है, कुछ अपने पुराने कस्टमर्स का फीडबैक है अगर इन दी फॉर्म ऑफ वॉइस, इन दी फॉर्म ऑफ प्रिंटेड लीफलेट्स, वो देती है, ठीक है। कुछ गिफ्ट आइटम्स देती है कि भैया आप किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हो और भले ही वो हमारा क्लाइंट नहीं है, भले ही वो हमसे नहीं जुड़ा है, ठीक है, लेकिन आप उसको एक गिफ्ट दे सकते हो। ये सारी चीजें, कुछ न्यू ईयर है मान लीजिए, कुछ दिवाली दशहरा अगर आ रहा है, फेस्टिव टाइम है, तो उसके गिफ्ट अलग कंपनी दे देती है कि आप जिससे भी मिलने जाएं कंपनी के प्रचार के लिए, जैसे की रिंग हो गया, पेन हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आइटम्स कंपनी अपने सेल्समैन को देती है। होता क्या है, आप बैठे किसी क्लाइंट से, ठीक है, बातचीत चल रही है, या आप मिले, मिलने के बाद आपने बात शुरू करी, फिर आपने क्या करा, बात शुरू करते करते वो क्लाइंट ने इंटरेस्ट लिया कि अच्छा अच्छा ये कंपनी है आपकी, ठीक है, आप कुछ उसके डिजाइन दिखाइए। अब आप अपना लैपटॉप का बैग या जो आपके पास बैग है उसको पूरा खोल के आप उसमें ढूंढ रहे हैं, जैसे सागर में से अमृत निकाल रहे हैं, ठीक है। तो उस समय आप ढूंढने में लगे हैं, मगर आपको वो प्रोडक्ट्स के डिजाइन नहीं मिल रहे, फिर आपको याद आया, अरे यार उससे तो बच्चे खेल रहे थे घर पर, मैंने डाले ही नहीं चलते समय बैग में, ठीक है। अब आपकी बेइज्जती हो गई वहां पर। तो आपको क्या हुआ कि उस समय पे ध्यान आ रही है ये सारी चीजें जब आप क्लाइंट से बात कर रहे हैं, क्लाइंट भी देख रहा है कितना बेवकूफ है कि मुझसे मिलने चला आ गया है, लाखों के बिजनेस की बात कर रहा है, इसके लैपटॉप में कुछ है नहीं, चलिए उसको भी छोड़िए। फिर उसने कहा कि भैया अगर तुम नहीं लेकर आए हो मोबाइल पे ही दिखा दो। अब आप मोबाइल दिखा रहे हैं, बैटरी रह गई है उस पर 12%, दिखाते दिखाते बैटरी चली गई, ठीक है, वो भी गया। तो दैट गिव्स अ बैड इंप्रेशन। मैं सिचुएशन बता रहा हूँ, ये सारी प्रैक्टिकल सिचुएशन है जो मैं देख चुका हूँ, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो Yes, sir. ऑर्गेनाइजेशन स्किल होना बहुत जरूरी है, खुद का ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सामने वाला जो कस्टमर है वो आप जानते नहीं है, जो आज की डेट में करोड़ों का बिजनेस टर्नओवर कर रही है कंपनी, उसका ओनर है, आप उससे मिलने जा रहे हो, वो लल्लू पच्चू नहीं है, ठीक है, कि आप उसे कुछ भी पढ़ा रहे हो वो पढ़ रहा है, वो भी आपको पढ़ रहा है, आप उसे पढ़ रहे हो वो आपको पढ़ रहा है कि यार ये किसी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आया है मेरे पास, ठीक है, इसको मैं बातचीत करके और आपको आपका हाव भाव आपका बिहेवियर देख के वो आपसे जुड़ने की बात सोच रहा है दिमाग में, और आप ऐसे बैठे हुए हैं, आपका खुद का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है प्रॉपर। तो क्या करें, आप किससे मिलने जा रहे हैं, क्या मीटिंग टाइम है, मीटिंग टाइम के समय आपके बैग में जरूरी सामान है या नहीं है, ठीक है। अब सपोज करिए कि हर क्लाइंट के लिए गिफ्ट आइटम आपने अलग अलग रखे हैं या कंपनी ने दिए हैं, आप वो कैरी नहीं कर रहे हो, आपने सोचा यार इतना बड़ा लखपति तो मुझे बात नहीं करनी है, तो ये गिफ्ट आइटम मैं लेके ही ना जाऊं। तो घर से निकलने से पहले सोच के जाइए कि मैं किससे मिलने जा रहा हूँ,
उससे मिलने के लिए मुझे क्या क्या सामान चाहिए होगा जो कंपनी ने दे रखा है, वो मेरे बैग में है या नहीं है। ठीक है, लैपटॉप की बैटरी, मोबाइल की बैटरी, ये सारी चीजें घर पे ही चार्ज कर लीजिए। रोज देखिए, ये सब गलतियां सेल्समैन करते हैं जब जाते हैं मिलने के लिए। ठीक है, तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स का पार्ट है, ये सीखने वाली बात है। ठीक है, फिर आ रही है बात वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्बली। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या आएगा, आप जो बोल रहे हैं, ठीक है, वो सामने वाला क्लियर सुन पा रहा है या नहीं सुन पा रहा है, सामने वाले को वो बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, सेल्समैन की जॉब है, अक्सर देखा होगा सेल्समैन क्या करेंगे, ये गुटखा, तंबाकू होता है ना, बिहार का सेल्समैन ले लिया आपने, कंपनी ने क्या करेगा, 24 घंटे सुर्ती मुंह में रखे रहेगा। बोलने का तरीका, अब मुंह में गुटखा दबाए एक तरफ और बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहे हैं। आपको लग रहा है मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, पर सामने वाले को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आपने टॉफी रखी हुई है, या आपने च्युइंगम रखी हुई है, ठीक है, या आपने गुटखा, तम्बाकू, सुपारी रखी हुई है मुंह में। वो ना करें। ठीक है, सामने वाले से बोलते समय आपकी आवाज, आपका सेंटेंस कंप्लीशन का मतलब जो भी आप सेंटेंस मुंह से निकाल रहे हैं उसको कंप्लीट करिए। सेल्समैन की आदत पड़ जाती है सेंटेंस इनकम्प्लीट बोलने की, उसे लगता है कि मुझे इतना सारा बोलना है, फटाफट 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 बोल दूं, ताकि 10 मिनट का जो बोलना है मुझे मैं 2 मिनट में बोल दूं और यहाँ से फ्री होके निकलूं। ये ना करें, आधा बोल दें, 2 लाइन बोल दें, पूरा पैराग्राफ बोलने की जरूरत नहीं है, 2 लाइन बोल दीजिए, मगर स्पष्ट हो, क्लियर हो, सामने वाले के समझ में आ रही है। ये आपके वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट। ठीक है, तो वर्बली जो भी कम्युनिकेट करें, चाहे वो फोन पर हो चाहे पर्सनली मिलकर हो, बिल्कुल स्पष्ट क्लियर वॉइस होनी चाहिए आपकी, सामने वाले को भी समझ में आ रही है। उच्चारण बिल्कुल सही करें, शाह को सा ना बोले, सा को शाह ना बोले, ये अगर गलतियां आपके अंदर है पहले से इसको करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये होती है टेंडेंसी कुछ गलत सेंटेंस करने की, कुछ अपना घर की भाषा को इंग्लिश में इनकॉर्पोरेट कर देने की, हिंदी में इनकॉर्पोरेट कर देने की। ठीक है, आप बात कर रहे हैं, पता चला बहुत से होते हैं घर का फोन उठा लिया, अब भावनाओं में बह गए, सामने भूल गए कि सामने किससे बात कर रहे थे। जब घर का वाइफ का या घर की मम्मी से बात चल रही है तो वही बात चल रही है, हाँ कौन को, हाँ ये को, शाम को आ जाऊंगा, ये खा जाऊंगा, वहां पी जाऊंगा, ये वाली भाषा इस्तेमाल ना करें। होता है ना ऐसा, हंसी आ रही होगी, ठीक है, बट ये लाइव है, ये मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये बिल्कुल ये अक्सर ऐसा होता है और ये करते हैं, ध्यान ही नहीं रखते हैं कि किससे बातचीत चल रही है। उसके बाद है प्रोफिशिएंसी इन इंटरेक्टिंग विद पीपल एट ऑल लेवल्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, अब इसमें क्या है, प्रोफिशिएंसी इन डीलिंग विद ऑल दी पीपल्स। सपोज करिए कि आप किसी कंपनी की तरफ से जा रहे हो डील करने के लिए, कोई बात करने के लिए, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे बात करने के लिए, ठीक है, सबसे पहला आदमी आपसे कौन टकराएगा उस ऑर्गेनाइजेशन में, सोच के बताइए। सर गेटकीपर, सर गेटकीपर। यस, गेटकीपर, धन्यवाद, बिल्कुल सही कहा। आप सोचिए, आप क्या सोच के चल रहे हैं, साहब हम तो धन्ना सेठ है, अरे हम तो सेल्समैन है, 5 साल हो गए हमें, है ना, कंपनी में काम करते करते, हम तो साहब सीधे मैनेजर से बात करेंगे। अब बीच के लोग वो कहाँ चले जाएंगे। सबसे पहले आप जिस कंपनी में जा रहे हो, गेटकीपर रोकेगा आपको, खुला थोड़ी है कंपनी का गेट कोई। अब गेटकीपर से बात करने का ढंग, हड़का दिया उसको, है ना, गाली गलौज कर दी उसके साथ में, देख लूंगा तुझे मैं, जाने क्यों नहीं दे रहा मुझे अंदर, मेरी गाड़ी भी अंदर आएगी, मैं भी अंदर आऊंगा, मेरे साथ जो 2 बैठे ठलुए मेरी गाड़ी में वो भी अंदर आएंगे। आपने बेइज्जती कर दी गेट पर ही, ठीक है, कुछ नहीं हुआ, कंपनी पे बात पहुंची, कंपनी ने कह दिया भगा दो, कंपनी ऐसे लोगों को अंदर ही नहीं लेगी, कहीं के सेल्समैन हो आप, कुछ भी हो, ठीक है,
कंपनी के मैनेजर को वो वॉचमैन फोन करेगा और कंपनी का मैनेजर कहेगा इतना सरदर्द नहीं है भैया, कोरोना वैसे ही फैला हुआ है और कंपनी का प्रेशर अलग है, जो भी आया भगा दो, गेट से ही वापस। आपने कर लिया अपनी मीटिंग का सत्यानाश। ठीक है, ये क्या है बेसिकली, प्रोफिशिएंसी इन इंटरेक्टिंग विद पीपल एट ऑल लेवल्स। तो ऑल लेवल ये आपको आना चाहिए। गेट कीपर है तो गेट कीपर से भैया जाने दे यार, है ना, उससे उसी टोन में बात करना है। अगर वो कोई गांव का है कुछ है तो आप वैसे ही डील करो उससे, यार भैया हाथ जोड़ के। और देखिए वो सक्सेसफुल होते हैं सेल्समैन जो अपने अंदर ईगो नहीं रखते, यार गेट कीपर से बात करूंगा मैं। और मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है, मैनेजर है किसी कंपनी में लेकिन गेट कीपर से हाथ जोड़ के, भैया यार जाने 2 मिनट के लिए जाने, ऐसे करके आपने रिक्वेस्ट करी तो गेट कीपर भी सोचेगा यार चलो यार जान लो, ठीक है, तो अंदर भेज दो। सबसे पहला तो वही हर्डल है, गेट से अंदर घुस जाए। अब गेट से अंदर घुसे तो रिसेप्शन पे पहुंचे, रिसेप्शन पे पहुंच रहे हैं, ठीक है, देखा बहुत सुंदर सी लड़की बैठी हुई है, काम तो भूल गए आप, गपियाने शपियाने लगे, ठीक है, मोबाइल फोन एक्सचेंज हो रहे हैं, नंबर एक्सचेंज हो रहे हैं, अपने मुद्दे से भटक गए। ठीक है, अब दूसरी हर्डल, तो अब आप फिर देखिए कि वहां पर आपको अपने स्किल दिखाने कि भैया रिसेप्शन पे आए हो, तमीज से बैठो, ठीक है, जब तक वेट करने को बोला जा रहा है करो, फालतू में इधर उधर ना घूमो। आप बार बार परेशान कर रहे हैं कि मैडम यहाँ पे वॉशरूम किधर है, मैडम यहाँ पर उनका केबिन किधर है, मैडम आप यहाँ पर कब से हैं, डोंट टॉक लाइक दिस। ठीक है, यू मीन बिजनेस, आप वहां पर बिजनेस के लिए हो। ठीक, ये आदत में होता है। मैं जो बता रहा हूँ आपको ना, थ्योरेटिकल तो आप लिख लोगे, मुझे उसकी चिंता नहीं है, थ्योरी आप सारी बना लोगे, बट प्रैक्टिकली मैं आपको एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज दिमाग में होनी चाहिए कि हम क्या क्या गलती करते हैं जो हमें पता भी नहीं होती। ठीक है, तो आपको अगर शांति से बैठना है वहां पर, क्योंकि होता क्या है ना, आपको लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन जिस ऑफिस में जहाँ रिसेप्शन पे आप बैठे हैं उसमें आप भूल जाते हैं सीसीटीवी लगा है, और जिस बंदे से आप मिलने जा रहे हो उसके कैबिन में वो वॉल माउंट टीवी लगा हुआ है एलईडी, जिसमें वो देख पा रहा है कि बाहर मुझसे मिलने के लिए कौन कौन लोग वेट कर रहे हैं। और जब वो अंदर से फोन करेगा फ्री होके, तब वो रिसेप्शनिस्ट आपको अंदर भेजेगी। तो आपका जो बेचैनी वाला बिहेवियर है ना कि मैडम पानी पिला दो, मैडम कोल्ड ड्रिंक दे दो और एक कप चाय भेज दो, खाली बैठे, ये सब वो नोटिस कर रहा है। ठीक है, तो उससे वो भी इरिटेट होगा और आपको वो फिर उसी तरीके से ही लेगा, हल्के में। तो ये सारी चीजें, इंटरेक्शन कैसे किया जाए, कैसे बैठा जाए, कैसे उठा जाए, ये सारी चीजें आप देखते चलिए। उसके बाद है डिमॉन्स्ट्रेटेड एबिलिटी टू ओवरकम ऑब्जेक्शन। ये कस्टमर की साइड से, कस्टमर की साइड से, ठीक है। इसमें क्या है बेसिकली, देखिए जब आप कस्टमर से बातचीत कर रहे हैं, कस्टमर मतलब प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, अभी बना नहीं है, आप उससे बातचीत कर रहे हैं, तो बातचीत करते करते कभी कभी ऐसा टर्न आ जाता है, लाइव हो रही है क्योंकि बातचीत, कि आपको अगर उसके मन में कोई शंका है, ठीक है, कोई डाउट है, तो उसको दूर करने के लिए आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देना पड़ेगा, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, और आपको बताना पड़ेगा कि सर देखिए ये मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ, आप इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, और आप उसके सामने वो चीज करके दिखाते हैं, राइट। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन की एबिलिटी है और ये आपके अंदर होनी चाहिए, ताकि वो जो शक है वो उसी समय ही रेक्टिफाई हो जाए, उसी समय। जैसे अगर कोई प्लास्टिक का फर्नीचर है, आपने देखा होगा सेल्समैन होते हैं जहाँ प्लास्टिक फर्नीचर बेचा जाता है ना, टेबल, चेयर, मोल्डेड अलमीरा, प्लास्टिक की, फाइबर की जो आती है, वो सारी चीजें जो आती है। कोई कस्टमर आया, उसने कहा, देखा, बोले यार बड़ी महंगी है ना, ये ब्रेकेबल है, आपने कहा कि ये अनब्रेकेबल है भाई प्लास्टिक, और ये आप टूटेगी नहीं, इसकी इतनी साल की गारंटी है। उसने हंसी में कह दिया, अरे साहब क्या बात करें, टूटेगी नहीं, इसको उठा के पटक देंगे तब भी नहीं टूटेगी। तो सेल्समैन क्या करता है, आप देखा होगा, वो उठा के पटक ही देगा, दिखाने के लिए, वो उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन एबिलिटी है कि सर देखिए, ठीक है, आप इसको चाहे जैसे पटकिए चाहे जैसे यूज करिए, वो दिखा दिखा के बेच रहा है।
उससे क्या होगा ना कि उसका कॉन्फिडेंस आ रहा है कस्टमर का, जब वो देखा कि यार ये तो वास्तव में इसने कर दिया है ना, तो उसका भरोसा कायम हो जाता है कि यानी कि वो बिलीव करता है कि सेल्समैन जो बात कह रहा है उसका मतलब बिल्कुल सही है, इसका मतलब कि कंपनी जेन्युइन है, प्रोडक्ट जेन्युइन है, आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली डिमॉन्स्ट्रेशन एबिलिटी का पार्ट। क्लोजिंग स्किल्स, क्लोजिंग वही है कि जब आप पाइपलाइन में सारी बात चल रही है, आपका कन्वर्सेशन चल रहा है, ठीक है, तो एट लास्ट हाउ टू क्लोज इट। कई बार देखा होगा आपने कि कुछ सेल्समैन क्या करेंगे, देखा शाम को 6 बजे से बैठे है ना, किसी डिस्ट्रीब्यूटर को बनाने के लिए किसी क्लाइंट के पास शाम के 6 बजे आप आए, मिलते मिलते 7 बज गए, बात करते करते 8 बज गए, ठीक है, मुद्दे की बात आते आते 8:30 9 बज गए, चाय बीच में आ गई तो 9 बज गए। 9 बजे आपके दिमाग में क्या चल रहा है, यार घर जाऊंगा आज, बीवी फिर से डांटेगी क्योंकि 7 बजे का वादा किया था, 8 बजे का घर आने का, 9 बज गए, दिमाग में चल रहा है ये बैकग्राउंड में। ठीक है, बच्चों के लिए ये भी लेके जाना है, मार्केट से सामान भी लेके जाना है, सब्जी तरकारी, वो चल रहा है आपके दिमाग में, उधर क्लोजिंग स्किल चल रहे हैं। ठीक है, उधर आपकी क्लोजिंग चल रही है, मतलब आप क्लाइंट के साथ बैठे हुए हो, तो हो क्या रहा है, जैसे ही आप उसने चेक काट के दिया आपको, फटाफट आपने चेक लिया, बैग में डाला, नमस्ते करके निकल गए। क्या गलती हुई इसमें, कोई गलती बताएगा क्या हुई इसमें? चेक नहीं देखा उस पर साइन है या नहीं, सही है नहीं। हाँ, वो तो बात की बात है। नहीं चेक का साइन नहीं, इसमें गलती क्या हुई, ये सही थी सिचुएशन वाइज, आप 2 घंटे से बैठे थे, जैसे ही उसने चेक काट के दिया आपने रखा, टाटा बाय बाय किया, निकल लिया, इसमें क्या गलत है? सर उससे फीडबैक नहीं लिया, थैंक यू वगैरह, मतलब यस भैया, आपने जो बोला, ठीक है, आप इतनी देर से बैठे थे, चलिए ठीक है, माना कि घर पे आपको बहुत सारे पेंडिंग काम थे, बट वो पेंडिंग काम आपको एक तरफ रखने हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसा, वो कहावत सुनी है ना आपने, वो मुर्गी जो सोने का अंडा देती थी, तो आपने क्या करा, वो खत्म ही कर दी मुर्गी, आप उससे हर बार कैसे मिलोगे जाके? ठीक है, आप 2 घंटे बैठे, आपको अभी एकदम से चेक काटने के बाद ये नहीं करना था कि चेक लिया चल दिए, चेक दिया उसने, चेक करते जेन्युइनली, रखते अपने पास, उसके बाद उसको एश्योरेंस दिलाते किस चीज का, कि सर अब आप हमारे साथ जुड़ गए, आपको सर आफ्टर सेल सर्विस। हाँ नहीं, आफ्टर सेल सर्विस यही शुरू है ना, यस आपको सर, बोलना यस था, सर। आपको बोलना था कि सर अब आप हमारे साथ जुड़ गए, हमारी कंपनी के साथ आप जुड़ गए, पहली चीज तो ये सर करिए, आपके पास मेरा फोन नंबर नहीं होगा, मेरा फोन नंबर आप अपने मोबाइल में सेव कीजिए, मतलब एक क्लोजिंग स्किल्स होते हैं। ठीक है, आप अपने सामने उसको बोलते कि सर आप मोबाइल फोन लाइए, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, ये नंबर सर मेरा सेव कर दीजिए, 24 घंटे सर आप मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, सर आई एम हियर, उसको और विश्वास दिलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बंदा चेक काट रहा है ना आपको 1 लाख का, 2 लाख का, उसके दिमाग में भी शक चल रहा है, आप कितनी अच्छी बातें कर रहे हो, आपसे वो फर्स्ट टाइम बिजनेस कर रहा है, तो उसके दिमाग में भी क्या है, शक है, यार मैं चेक दे तो रहा हूँ लेकिन ये बंदा जेन्यून है, ये कंपनी जेन्यून है, तो वो ये सोच विचार ही कर रहा है, लेकिन चेक भी दे रहा है साथ में, और आपने उसको पुख्ता कर दिया, जैसे ही चेक मिला आप बटोर के निकल लिए, तो उसने सोचा यार ये तो चेक का इंतजार कर रहा था, अब साला दोबारा मिलने आए, मैं भगा दूंगा इसको, या चेक पे मैं बैंक से क्लियर ही नहीं होने दूंगा, स्टे लगा दूंगा चेक का। क्या कहाँ से कर लोगे आप चेक क्लियर, बताइए? और आपने क्या करा, क्लोजिंग करी नहीं सही से, तो क्लोजिंग में थैंकिंग नोट देना है, ठीक है, उसको धन्यवाद देना है, वो साथ में जुड़ा, उसको जो जरूरी चीजें हैं वो बतानी है, जो जरूरी नंबर है वो देने हैं, वो सब चीजें देनी है। बात समझ में आ रही है? अपना नंबर दीजिए, अपने बॉस का नाम बताइए कि सर हमारे बॉस भी हैं, और कहाँ रहते हैं, क्या नाम है, वो लिखवा दीजिए उन्हें, कंपनी का क्या प्रोसेस है, कैसे वो ऑर्डर देंगे, ठीक है, कितने समय पे ऑर्डर आपको मिलेगा, ठीक, कैसे कोई अगर समस्या आएगी तो किससे बात की जाएगी, ये सारी चीजें बताना जरूरी है, और ये तभी बताई जाएंगी जब वो एक बार आपसे जुड़ जाए। ठीक है, तो ये क्लोजिंग स्किल्स का पार्ट। पर्सनल प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट,
बहुत ही बढ़िया, पर्सनल प्लानिंग, ठीक है, सेल्स की जॉब है। कभी कभी घर में घुसते हुए आपको रात भी हो जाएगी, 10 बज जाएंगे, ठीक है, खाना वाना खाएंगे आप घर में, घर वालों से साथ बैठेंगे, टीवी देखेंगे, 11 बज जाएंगे, 11 बज जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट डे आप सुबह मान लीजिए 9 बजे उठ रहे हैं, सुबह आप, मार्केटिंग की देखिए जॉब होती है, जरूरी नहीं है कि उसमें ऑफिस जाना, आप सीधे क्लाइंट के पास जाते हैं मार्केट में। क्लाइंट ने आपको टाइम दे रखा था सुबह 8 बजे का, कि भैया ऐसा है कि मैं तो निकल जाता हूँ, मान ले रहे हैं आप कोई इंश्योरेंस बेच रहे हैं, चलिए ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस है या हेल्थ पॉलिसी है, जिसकी है हेल्थ इंश्योरेंस, जिसका कराना है जिस व्यक्ति को, वो सुबह सुबह ऑफिस जाता है। उसका ऑफिस मान ले रहे हैं रामपुर में है, बरेली में रहता है, रामपुर में ऑफिस है, वो सुबह निकल जाता है 8 बजे, ठीक है, 8:15 बजे, और रात को आता है वापस। अब आप उससे मिले कैसे? या तो आप जाइए रामपुर मिलने के लिए, अब आपने उससे बहुत रिक्वेस्ट करी कि सर आपका 2 मिनट चाहिए मुझे, 5 मिनट चाहिए, आप किस समय फ्री हैं, ठीक है, 2 या 3 बार पूछने के बाद उसने कहा कि आप 7:30 आ जाइए, ठीक, 7:30 आ जाइएगा, मैं नाश्ता करते करते आपसे मिल लूंगा। बात समझ में आ रही है? ये सिचुएशन है, ठीक। 8 बजे वो निकल जाएगा अपने जो भी बस या गाड़ी से जाता है। आपकी स्थिति क्या है? कमिटमेंट तो आप करा है, ठीक, आप रात को 11 बजे सोते हैं, सुबह 9 बजे उठते हैं, कैसे काम चलेगा? टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, ये देखिए लिखा हुआ है, ये मेन चीज है, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, ये सीखने आपको। जब तक आप अपने टाइम को मैनेज करके नहीं चलेंगे, जब तक आप अपनी पर्सनल प्लानिंग में क्या आएगा? अभी तो ये था, ऊपर मैंने बताया ना ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स भी बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है। एक सेकंड, वो आपको जो मैंने बताया ना कि सिचुएशन वाइज, कि किसी पर्टिकुलर जगह पे सेल्स करने के लिए आपको क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन करना है, और ये जो है पर्सनल प्लानिंग है। आपकी क्या प्लानिंग है? प्लानिंग डे की भी होती है, प्लानिंग रोज होती है। सुबह जब आप उठ रहे हैं, ठीक है, तो आपको पूरे दिन का ये मालूम होना चाहिए कि आज मुझे किस किस से मिलना है। पहली चीज, ये प्लानिंग का पार्ट, पर्सनल प्लानिंग का। घर से जब आप निकले तो आपकी बुक में, आपकी डायरी में 10 लोगों के नाम, नंबर, पते, और उनसे अगर पहले बात हो चुकी है कॉल पर तो उन्होंने क्या कहा वो लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो आप पूरे दिन का, रात के 11 मालूम है क्यों बजे थे आपको? उसी सेल्समैन को वो इसलिए बजे थे क्योंकि आप हैफाजत चल रहे थे, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है, देखा जाता है, आपने टाइम नहीं पूछा, उसने भी कह दिया कि यार इस समय आ जाओ, वो नहीं होगा। आप अपना उसी टाइम में ही 8 या 9 बजे तक ही अपना काम कंप्लीट कर पाओगे अगर प्रॉपर ढंग से चलोगे। प्लानिंग, बल्कि प्लानिंग यहाँ तक की जाती है कि अभी बरेली का तो कुछ नहीं है मार्केट, बरेली में क्या है, पूरा मार्केट क्या है, 6 या 7 किलोमीटर या 10 किलोमीटर में पूरा बरेली सिमट जाता है, खत्म हो जाता है। आप राजेंद्र नगर में हो, डीडीपुरम जा सकते हो तुरंत, डीडीपुरम में बैठे हो आप, महानगर चले जाओगे, ग्रीन पार्क सैटेलाइट चले जाओगे, सैटेलाइट पे बैठे हो श्यामतगंज चले जाओगे 2 किलोमीटर दूर, श्यामतगंज में बैठे हो आप प्रेमनगर आ सकते हो 1 किलोमीटर दूर। तो बरेली में तो कुछ नहीं है। अब सपोज करिए आपकी जॉब दिल्ली में लग जाएगी, दिल्ली में बैठे हो पीतमपुरा में, ठीक है, पीतमपुरा में बैठ के करोल बाग में मिलने जाना है, मालूम है कितने घंटे लगेंगे? पीतमपुरा में बैठे हो, किसी को क्लाइंट को कह दिया कि मैं पहुंच रहा हूँ सर बस 2 मिनट में आया, कह दोगे आप ऐसे? कह ही नहीं सकते। पीतमपुरा से करोल बाग पहुंचने में 2.5 घंटे लगेंगे। कनॉट प्लेस पे बैठे हो आप, ठीक है, कनॉट प्लेस से आपने कह दिया चांदनी चौक में आना है मिलने के लिए, चांदनी चौक में किसी क्लाइंट से 2 सवा 2 घंटे चाहिए।
12 खंबा पे बैठे हो आप, रोहिणी जाना है, 3 घंटे चाहिए दिल्ली में, राइट? तो फिर प्लानिंग जब तक नहीं करके चलोगे तो आप 10 लोगों के जो नाम लेके चले हो अपने सुबह सुबह डायरी में, उनसे आप मिल ही नहीं पाओगे। तो आपको ये देखना है, आपको रूट बनाना है, मैप बनाना है डेली कि यार मैं बैठा हूँ यहाँ पे कनॉट प्लेस पे, मैं सुबह मिलूंगा पहले करोल बाग में किसी से, करोल बाग से मिलके मैं 12 खंबा रोड पर आऊंगा, 12 खंबा से मैं चांदनी चौक जाऊंगा, चांदनी चौक से मेट्रो पकड़ के मैं रोहिणी जाऊंगा, रोहिणी से काम कंप्लीट करता हुआ पीतमपुरा से महिपालपुर आके घर आ जाऊंगा। ये आप जब तक जब तक आप रूट नहीं बनाओगे, कौन सी बस मिलेगी, कौन सा मेट्रो पकड़ूंगा, ये सोच के नहीं चलोगे, तो आपका पूरा दिन का जो प्लान है वो नहीं बन पाएगा। सॉरी, भागते रहोगे आप। ये मैं खुद कर चुका हूँ, ठीक है, सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि फिर होता क्या है ना कि आप 10 का टारगेट लेके चले हो, आपने देखा है पूरे दिन में हम 3 ही लोगों से मिल पाए, 4 ही लोगों से मिल पाए, ठीक है, और आधा काम तो छूट ही गया, आधे लोगों से बात ही नहीं हुई, ये खत्म हो जाएगा। और टाइम से सोना, टाइम से उठना, सबसे पहली बात, तो उसमें क्या आ जाएगा, आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी आ जाएगा, ठीक है। घर पे आपको किसी चीज में समय लग रहा है, उसको पहले से देख के चलिए, संडे है, सैटरडे है, ठीक है, वीकेंड पे वो काम कीजिए। जो ऑफिस का टाइम है, ऑफिस के टाइम को यूटिलाइज करने के लिए डायरी मेंटेन करके चलिए, और टाइम का पूरा एक स्लॉट बना के चलिए, टाइम टेबल बना के चलिए कि मुझे कैसे किस किस से कब मिलना है और मुझे कितना समय किस पर लगाना है। यहाँ तक कि जो 1000 रुपए का बिजनेस दे रहा है उससे मुझे कितनी बात करनी है, जो मुझे 10,000 का बिजनेस दे रहा है उससे मुझे क्या बात करनी है, और जो मुझे 1 करोड़ का बिजनेस दे रहा है उससे मुझे क्या बात करनी है। सोचेंगे या नहीं सोचेंगे? यस सर। Yes, ठीक sir. है, तो जो फ्रेंचाइजी के साथ आपको टाइम बिताना है, जो आपकी फ्रेंचाइजी लेने जा रहा है, फ्रेंचाइजी का मतलब होता है 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख का बिजनेस, 1 करोड़ का बिजनेस, ठीक है। तो अगर फ्रेंचाइजी के लिए मिलना जा रहे हैं तो पूरे दिन का आप सारी मीटिंग कैंसिल कर दो, खत्म, मुझे आज सुबह से शाम तक फ्रेंचाइजी की ही चरपैया डाल के लेटना है, ठीक है। तो फ्रेंचाइजी के पास ही पड़े रहो पूरा दिन, क्यों? तो भैया वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर उसमें छोटे लोगों का वो आप डालो ही नहीं, प्लान ही मत करो, ठीक है। तो आपको ऐसे अपनी डेली प्लानिंग करनी है, डेली की डेली, कि आज मुझे किस व्यक्ति से मिलना है, वो व्यक्ति से मैं क्या बात करने जाऊंगा, वो डिस्ट्रीब्यूटर बनाऊंगा, उसको रिटेलर बनाऊंगा, फ्रेंचाइजी ऑफर करूंगा, या सिंपल कस्टमर की बात करूंगा, ठीक है। ये आप लिख के रखेंगे और ये आपके पर्सनल स्किल्स, पर्सनल प्लानिंग और सेल्समैन टाइम मैनेजमेंट स्किल्स का पार्ट है। Am I clear with this? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बोर तो नहीं हो रहे हो? समझ में आ रही है सारी No, sir. चीजें? हाँ सर। That's important. Yes, sir. हाँ, एग्जाम्पल ज्यादा हो गए स्लाइड में, और रीजन ये था बताने का तुम लोगों को कि ये जो बिहेवियरल दिक्कतें होती है ना, ये सेल्समैन में अक्सर ये देखी गई है, ठीक है। लिखने को तो मुझे पता है आप लिख दोगे सारी स्लाइड। अभी तक हमने बात कर ली है, सेलिंग पे बात करी, हमने ये भी बात कर ली है कि सक्सेस फैक्टर्स क्या है, ठीक है, सेल्समैन के लिए या किसी भी बंदे को जो सेलिंग कर रहा है। अब मुद्दे की बात आ रही है कि सेल्समैन है कौन, सेल्समैनशिप क्या है, ठीक है। अभी तक जो हमने डिस्कशन कर लिया है, जितना पार्ट अभी तक पढ़ चुके हैं, उसमें से आपको 1 लॉन्ग क्वेश्चन या 2 शॉर्ट क्वेश्चन इजीली मिल जाएंगे, 1 और 2, ठीक है। तो ये आप जो अभी तक डिस्कशन हो चुका है सेलिंग के ऊपर और पेपर के ऊपर, ये सारी चीजें, तो उसको ढंग से पढ़ लीजिएगा। अब जो आगे हम बढ़ रहे हैं सेल्समैनशिप, तो सेल्समैनशिप पर आपको शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन इजीली मिल जाएगा, ये भी अच्छा है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए बात वही आ रही है, सेल्समैन की हम बात कर रहे हैं, हम बात चल रही है सेल्समैन की, ठीक। सेल्समैन के आगे शिफ्ट लग गया है, इट मींस के द एक्टिविटी व्हिच द सेल्समैन परफॉर्म, बेसिकली इट्स द एक्टिविटी, ठीक। सेल्समैन जो भी परफॉर्म कर रहा है, सेल्समैनशिप उससे नाम दिया जा रहा है। तो फॉर एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन द सेल्समैनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, you have to nurture it, you have to
क्रिएट इट सेल्समैनशिप. अगर आप